In earlier lectures, we have discussed about the two component system. For the two component system, we have to change the phase rule equation. One of the component pressure, one of the variable, that is pressure, it is wiped out or removed, and we are left with the C minus P plus 1 only. The variation of temperature versus composition, that is being discussed. So these isobars we will discuss for the two component system, how the composition varies or the temperature varies or it alters the composition of the two components. That will be discussed in the two component system. Some definitions I have pointed out, that whenever we are having two component system, either you are having the fusion point curve, melting point curve, or dissociation curves. Depending upon whether the two component they are the metals, then it is the fusion point curves or melting point curves. If one of them is solid, any solid, another of them is a liquid, then it is the solubility curve. When the two components they are mixed, then they can form a compound which is stable up to its melting point. Then we say that compound is having a congruent melting point. For example, magnesium mixed up with the zinc forms MgZn2. That is a stable compound and it is stable up to its melting point. When the two component mix, what they form a compound which decompose prior to the melting point, then that is termed as the compound having incongruent melting point. Sodium chloride mixed with the water form NaCl2H2O, that is a compound. What this compound breaks prior to its melting point or decompose prior to its melting point. This means that NaCl water system is having incongruent melting point, eutectic point. जो दो कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इजीली मेल्टिंग इसको बोलते हैं. ये वो पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है जो कंपोजिशन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम मेल्टिंग पॉइंट पर जो है वो मेल्ट हो जाती है या कम टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट हो जाती है. जैसे जैसे एग्जांपल डिस्कस होते जाएंगे वैसे वैसे टर्म्स आपको क्लियर होती जाएंगी. बिफोर मूविंग टू द टू कंपोनेंट सिस्टम, लेट अस मूव टू द cooling curves. How we can discuss the cooling curves? ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम जो वो शो कर रखा है. थोड़ा थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहां पर. नीचे वेरिएशन ए और बी की शो की है. सबसे पहले नीचे से यहां से मूव कर रहा हूं मैं, यहां से आपको शो करता हूं. दिस पॉइंट इट इज ए इज buried from this point to the this point. It means at this point A is 0, but at this point A is 100%. B is varying from this point. B is 0 at this point, but B becomes 100 at this point. Along this line there is a variation of temperature. Along this line there is variation of the temperature. Since A is varied from this side, it is 100 at this side. It means this point clearly denotes the pure A, and that point clearly denotes the pure B. This denotes clearly pure A, that denotes purely B. So that is the melting point of the A, that is the melting point of B. As it is obvious from the figure, B is having higher melting point than the A. This C belongs to the eutectic point. This belongs to particular composition of A is to B, which is having a melting point lower than the individual melting point of A component or B component. The portion here, this one which is shown here, this portion is totally melt. Melt means it contains molten metals. This portion here, it is having solid A plus melt. Means along this line, this is pure A. As you will add B to it, then A is, you can say, freeze out or solidify here, and in this area we are having solid A plus melt. As you go on, continue to add B. At point C, we are having the
stoppage of solidification of the A, but now solidification of the B starts. So along this line, solidification of B is there. So here solid V plus melt is there. Or indirectly, if you discuss it from this point, then this is the melting point of the B, pure B. As you are adding A, means moving toward the inner side, it is the addition of A. So as A is added to the B, the melting point of V falls here. तो melting point जो B का decrease होता जाएगा, it decreases up to the point C. That is the eutectic point. क्या बोलते हैं इसको? eutectic point. अब आती है बात कूलिंग की. तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ये स्मॉल ए से, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन है मेरे पास. ये नीचे की तरफ आप लाइन ले आओ यहां से और ये नीचे वाले पॉइंट तक यहां पर. तो ए और वी की मोल फ्रैक्शंस निकाली जा सकती हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली कंपोजिशन निकाली जा सकती है. जैसे ही आप इसको कूल करना स्टार्ट करोगे, ए से बी तक डायरेक्टली कूल अप हो जाएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. कैसे ये ग्राफ बनता है वो साइड में यहां पर देखते हैं. दिस पॉइंट इट इज कूलिंग फ्रॉम ए टू बी. तो यहां से ये पॉइंट ए है, ए से बी तक टेम्परेचर जो वो स्लोली डिक्रीज करेगा. ये डायरेक्ट कूलिंग है फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज नथिंग ए, इट इज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे कूलिंग होती जाएगी. सो ए तक से लेके बी तक पॉइंट ये है. तो यहां जो मैंने डिस्कस किया फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द कूलिंग, डायरेक्ट कूलिंग. तो इसमें लिक्विड है ऊपर, जिसमें मोल्टन ए भी होगा, मोल्टन बी भी होगा. तो दोनों मेल्ट जो हैं या दोनों मोल्टन लिक्विड जो हैं वो स्लोली बी तक कूल होंगे. बी तक कोई भी सॉलिडिफिकेशन नहीं होगी. जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो क्या होगा? हेयर यू आर हैविंग सॉलिड बी प्लस मेल्ट, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर क्या था? मॉल्टन स्टेट है. जैसे आप इस लाइन को क्रॉस करोगे, नीचे लाइन में क्या लिखा उसने? सॉलिड वी. इसका मतलब बी की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई. तो यहां बी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ए की सॉलिडिफिकेशन नहीं होगी. किसकी? बी की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. जब सॉलिड बनता है तो इसका मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा. सॉलिडिफिकेशन मीन्स सम बॉन्डिंग बिटवीन वन एटम टू द अनदर एटम. व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड देन एनर्जी इज रिलीज्ड. तो एक तरफ तो आप उसको कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, दूसरी तरफ सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो सॉलिडिफिकेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है. तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. वंस यू आर कूलिंग द मेल्ट, another way it is solidifying, then there is a increase in the temperature. तो दोनों आपस में काउंटर करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा. ए से बी तक डायरेक्ट कूलिंग है, उसके बाद जो पाथ फॉलो होगा वो ये पाथ फॉलो होगा जो मैं लाइन यहां पर लेके जा रहा हूं कर्सर से. ये कूलिंग की लाइन, यानी आपके पास ए से बी तक तो ग्राफ स्ट्रेट रहेगा. सो दैट इज द स्ट्रेट ग्राफ फ्रॉम ए टू बी. ये ए से लेके बी तक पॉइंट जो वो स्ट्रेट है. लेकिन उसके बाद जो है कूलिंग भी हो रही है, साथ में हीटिंग भी हो रही है. हीटिंग कूलिंग किस वजह से? आप टाइम के अकॉर्डिंगली उसको कूल कर रहे हैं, ठंडा होने दे रहे हैं. और सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो सॉलिडिफिकेशन से बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने से हीट प्रोड्यूस होगी. तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. तो उससे क्या होगा कि आपका ग्राफ थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा. ए से बी तक डायरेक्ट कूलिंग, फिर बी से ये पाथ फॉलो करेगा कहां तक? सी तक कंपोजिशन फॉलो करेगा. कहां तक? सी तक जो कंपोजिशन फॉलो करेगा. ये कंपोजिशन यहां पर किस तरह से फॉलो होगी? सो सी हियर, इट इज द डायरेक्ट कूलिंग फ्रॉम ए टू बी. हियर इट इज द मेल्ट इज देयर. उसके बाद बी से सी तक कर्व टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो कूलिंग हो रही है, उल्टा उसमें हीटिंग भी हो रही है. तो वो आपकी कूलिंग क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? स्लो डाउन. सो दिस कूलिंग स्लो डाउन अप टू द पॉइंट सी. जब सी पॉइंट तक पहुंच गए तो सी पॉइंट पर ए की सॉलिडिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. यहां इस पॉइंट पे थे हम, ए से बी तक मेल्ट है, दोनों मोल्टन स्टेट में मेटल्स थी. जैसे ही आपने बी तक पहुंचे वहां पर क्या होगा? सॉलिड वी की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई. उसके बाद कर्व जो वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ
सॉलिडिफिकेशन से हीट पैदा हो रही है, दूसरा कूलिंग हो रही है। तो स्लो डाउन होने से ये किस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा अंटिल द यूटेक्टिक पॉइंट इज रीच्ड। एज वी आर रीचिंग टू द यूटेक्टिक पॉइंट देन सॉलिडिफिकेशन, ये सी से नीचे सारा ही सॉलिड है, सॉलिड ए और सॉलिड बी, तो एकदम सॉलिडिफिकेशन जो वो स्टार्ट रहेगी। तो यहां पर जो है ये फर्स्ट पॉइंट था, ए से बी तक मेल्ट, बी से सी तक बी की सॉलिडिफिकेशन, सी पर ए भी सॉलिडिफाइड होना शुरू हो जाएगा। एज यू आर रीचिंग टू द पॉइंट सी सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए आल्सो स्टार्ट्स। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि सी की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, सॉरी ए की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई। तो ए भी वो सॉलिड में चेंज होता जाएगा, बी भी सॉलिड में चेंज होता जाएगा। तो इस टाइम पे आपके पास टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहां पर क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहां ए से बी तक मेल्ट, बी से सी तक बी की सॉलिडिफिकेशन, सी पॉइंट पे पहुंचने पे ए भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया और टोटल मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा आपके पास। तो ना तो उसमें ए जो है वो लिक्विड स्टेट में बचेगा, ना बी लिक्विड स्टेट में बचेगा। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर वेरी नहीं होगा। सो फ्रॉम सी टू एल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सी से लेके एल तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इसमें ए भी सॉलिड में चेंज हो गया, बी भी सॉलिड में चेंज हो गया। जब पूरा सॉलिडिफाई हो गया तो फिर अगर आप उसको कूल करते हैं तो वो सॉलिड मेटल होगी, कूलिंग जो उससे उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगेन स्ट्रेट पाथ इज फॉलोड। सो दिस इज ए सॉलिडिफिकेशन और दिस इज द कूलिंग कर्व, जिसको आप कूलिंग कर्व बोल सकते हैं, फॉर द टू कंपोनेंट सिस्टम। आपके पास मेटल्स हैं, मेटल में आपने कूलिंग की, कूलिंग में किस कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर जो वो, या सॉलिडिफिकेशन जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको थोड़ा सा और वे से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज आई एम हैविंग द मेल्ट विच इज हैविंग कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द दिस लाइन। तो इस लाइन को नीचे ले आओ, यहां पर ए जो है वो कम से कम 90% होगा, बी आपके पास 10% होगा। जैसे आप इसकी कूलिंग स्टार्ट करते हो, डी से ई तक जो वो सिंपल ए से बी तक जैसी चेंज आएगी वैसी ही चेंज आएगी, यानी मोल्टन मेटल्स का टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो होगा। लेकिन जैसे ही आप ई पॉइंट पे पहुंचोगे सॉलिड ए सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। सो वंस द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट द कर्व विल डाइवर्ट फ्रॉम डायरेक्ट पॉइंट, नीचे की तरफ नहीं मूव करेगा, ई से सी तक मूव कर जाएगा। कहां तक की तरफ मूव करेगा, ई टू सी। सो फर्स्ट पाथ डायरेक्ट कूलिंग, देन ई टू सी इट इज कर्व्ड कूलिंग, एक तरफ उसमें सॉलिडिफिकेशन साथ में उसमें कूलिंग, तो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्रेरी हैं। जैसे ही पॉइंट सी तक पहुंचते हो सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए तो हो ही रही है, यहां पर सॉलिडिफिकेशन ऑफ बी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन ऑफ बी। तो उसके बाद जो कर्व आपके पास क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, या लाइन जो वो स्ट्रेट रहेगी, या ग्राफ जो वो स्ट्रेट रहेगा। तो दोनों केसेस में आपके पास ये वाला कूलिंग कर्व आएगा, पहले ए से बी तक या डी से ई तक, ए टू बी और डी टू ई, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बी से लेके सी तक या ई से लेके सी तक, ग्राफ आपको मैंने बताया पीछे अभी, तो उसमें जो है वो आपके पास कर्व्ड कूलिंग रहेगी। उसके बाद सी टू एल दोनों की सॉलिडिफिकेशन है, एल पर दोनों सॉलिडिफाई हो गए, तो यहां पर उसके बाद जो वो सॉलिड मेटल्स आ गई उसकी कूलिंग के लिए आपके पास जो वो स्ट्रेट कर्व आएगा। दैट इज द कूलिंग of the molten metals or melt in the curve for the composition either corresponding to this point or corresponding to this point. Let us see what is the solidification corresponding to this point. Here I have not pointed any point, but suppose this point is N here. अगर N से आप कूलिंग करना स्टार्ट करते हो, सो N से लेके C तक कूलिंग कर जाओ, कोई भी मेटल्स में सेपरेट आउट नहीं होगी या सॉलिडिफाई नहीं होगी। सो दैट इज द ग्राफ फ्रॉम N टू C देर इज नो सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्ट कूलिंग ऑफ द लिक्विड इज देयर। सो N से लेके दिस पॉइंट, सपोज इट इज द पॉइंट N हियर,
If it is not clear, let me to again focus. It is this point, suppose this point is n point, तो n से c तक किसी भी मटेरियल की सॉलिडिफिकेशन नहीं होगी। जैसे ही c पॉइंट पे पहुंचते हो a और b इकट्ठे ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर a से b तक पहुंचे, सॉलिड b सेपरेट होना शुरू हो गया। यहां d से e तक पहुंचे, सॉलिड a की सेपरेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर n पॉइंट से c तक आते हो आप, तो किसी भी मेटल की सॉलिडिफिकेशन नहीं होगी जब तक आप c पॉइंट तक नहीं पहुंचते हो। जैसे आप c पॉइंट तक पहुंचोगे, solidification of A and B, it will start immediately. So here from N to C, nothing solidified. At point C, solidification of A and B both start. It continues up to the point L. There is no change in temperature at all. But once you are reaching at L point, means complete solidification of A and B is there, then there is a cooling of the solid metal. It follows the path L to M. तो ये थोड़ा सा कूलिंग कर्व के बारे में है। वैसे तो डायरेक्ट क्लास हो तो वहां अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इसको इजी है, अदरवाइज समटाइम इट फील्स डिफिकल्ट बिकॉज वंस आई एम टेलिंग वन स्ट्रक्चर, अनदर टाइम आई एम टेलिंग द अनदर स्ट्रक्चर, तो इतना कोऑर्डिनेशन इसमें बिठाना जो वो आसान थोड़ा नहीं है। जैसे ही आप दूसरा कोई ग्राफ डिस्कस करोगे या कोई हम कूलिंग कर्व किसी का मेटल्स का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, या एक मैं आपको पिक्चर शो कर देता हूं, उसको नेक्स्ट टाइम मैंने डिस्कस करना है, दैट इज रिगार्डिंग द लेड सिल्वर सिस्टम। तो यहां पर आपके पास एक जो वो एक्चुअली जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, डिस्कस लेड एंड सिल्वर सिस्टम। सो दिस इज ए एक्चुअल लेड सिल्वर सिस्टम। थोड़ा थोड़ा इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां सिल्वर जो इस लाइन पे 100% है, दिस मीन्स इट इज ए प्योर सिल्वर। दिस साइड इट इज द 100% लेड, सो 100% लेड आई हैव रिटन हियर। उसके बाद ये जो है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कब जो वो किसका है, सिल्वर का है। तो 961 डिग्री सेल्सियस जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सिल्वर का, सो इट ग्रेजुअली फॉल्स बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ लेड टू द सिल्वर। अगर लेड आप सिल्वर में डालते जाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। इट डिक्रीजेज अप टू द यूटेक्टिक पॉइंट विच इज सोन हियर 303 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द दिस यूटेक्टिक पॉइंट? इसमें 2.6% आपके पास सिल्वर बचता है और 97.4% इसमें जो वो लेड होता है। सो दैट इज द मिक्सचर विच इज हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर देन द इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट। एक का मेल्टिंग पॉइंट 961 है, वो सिल्वर का है। 327 डिग्री सेल्सियस जो है दैट कोरोस्पॉन्ड टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। बट इफ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर कंपोजिशन, 2.6% it is silver, 97.4% it is the lead, then this is having lowest melting point than the individual melting point of the two metals, that is the 303 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी वो कूलिंग कर्व है। अगर आप A से B वाली जो कंपोजिशन है नीचे की तरफ ले जाते हो, इट मीन्स इट इज 99% लेड एंड 2.6% से ज्यादा उसमें 99 का मतलब क्या, 1% उसमें सिल्वर बचेगा। अगर आप इसकी कूलिंग करते हो तो A से B तक डायरेक्ट कूलिंग होगी, लेकिन जैसे ही आप पॉइंट B तक पहुंचोगे तो इसमें लेड की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसकी सेपरेशन? लेड की। बिकॉज यू विल एंटर इन दिस रीजन एंड ही सेज इट इज मेल्ट प्लस सॉलिड लेड। क्या आएगा ये? मेल्ट प्लस सॉलिड लेड। सो प्योर लेड जो इसमें से सेपरेट होता जाएगा। और ये किस पाथ को फॉलो करेगा? अंटिल इट रीचेस दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपके पास कंपोजिशन सिल्वर की इंक्रीज हो जाएगी और लेड उसमें से सेपरेट होता जाएगा, तो लेड की कंपोजिशन आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। वेयर इट इज बीइंग फॉलोड, जो आपके पास ओर्स आती हैं, जैसे लेड की जो वो लेड सल्फाइड ग्लेना जिसको बोलते हैं, लेड ग्लास जिसको बोलते हैं, दैट इज हैविंग सिल्वर एज द इम्प्योरिटी। तो सिल्वर आपको उसमें से रिमूव करना होता है। तो प्योर जो लेड यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, ओनली बाय कूलिंग द सिस्टम यू कैन गेट द प्योर लेड फ्रॉम हियर। तो एक पैटिंसन प्रोसेस है, डिसिल्वराइजेशन ऑफ द
लेट ग्लांस और ग्लेना, वो हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम.